آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور وہ کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ ہم سب نے بچپن میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی نہ کوئی کہانی سنی ہی ہوتی ہے۔ چلیں آج آپ کو وہ کہانی دوبارہ یاد کرواتے ہیں۔ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اب جناب اثر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو ایک درندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ درندہ بنتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو رات کے اندھیرے میں کسی ایک خاتون کا، عورت کا خون پینا ہوتا ہے، اور جب وہ خاتون کا خون پی لیتا ہے تو پھر وہ انسان صبح میں دوبارہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی وہ کہانی ہے جسے ہم لوگوں نے سن رکھا ہے ٹی وی پر، کارٹونز میں، یا کسی نہ کسی فلم میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی روداد جو ہے وہ دیکھی بھی ہوگی ابھی، لیکن پریکٹیکلی یہ روداد ایک انسان پر فٹ آتی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے۔ لیکن وہ انسان ہمارے معاشرے کا ایسا انسان ہے جو درندے سے انسان نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ درندے سے ایک بڑا درندہ بن جائے، اور اس کے لیے وہ کاوش اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب تک اس نے 4 کوششیں کر لی ہیں، جس میں تیسری کوشش جو ہے وہ مبینہ ہے۔ جی ہاں، میں ایک ڈاکٹر، وہ بھی مبینہ ہی ہوگا بھائی، تو ایک ڈاکٹر کی کہانی یہ سناتا ہوں، اس سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ اب وہ حضرت کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور لبادہ اوڑھ کر وہ شادیاں کرتے ہیں۔ وہ ہر رات اس خون کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، وہ خون پیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں پیتے کہ بھائی وہ کوئی انسان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان تو وہ ہیں ہی نہیں۔ وہ اس لیے پیتے ہیں، وہ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ مزید بڑے درندے بن سکیں۔ آپ پہلی شادی سے ان کی دیکھ لیں، انہوں نے اس خاتون کا کیا حال کیا۔ اس کے بعد دوسری توبہ، اس کے ساتھ کیا حال کیا، کس کس قسم کی ویڈیوز اپنی ہی بیوی کی اس درندے نے مارکیٹ نہیں کی۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نے اس اپنی دوسری بیوی کو نشے پہ بھی لگایا تھا۔ اور بہت سارے صحافیوں نے اور بہت سارے لوگ جو ان سے رابطے میں ہیں، انہوں نے تو جناب مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو نشہ کرتے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں یہ بات جس سے سنی ہے اسی کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو جناب یہ بھائی صاحب نے پھر تیسری وہ خاتون تھی جو بار بار، آپ سب کو پتہ ہے، میڈیا پہ بہت زیادہ آئی، وہ تیسری عورت جو بیچاری کلیم ہی کرتی رہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بات مانی نہیں۔ پھر چوتھی علل اعلان شادی کی، تیسری کہہ کر۔ اور اس کے ساتھ دانیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب دانیہ کے ساتھ وہی ہوا جو تینوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک علیحدہ پہلو بھی دوست میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آج کل کی ہر لڑکی کو سننا بہت ضروری ہے، آج کل کے ماں باپ کو سننا بہت ضروری ہے، آج کل کی جنریشن کو سننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ پہلے ڈاکٹر عامر کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو دانیہ ہے اس پہ بھی آئیں گے۔ تو جناب ہوا یہ کہ یہ جو 4 مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب نے شادی کی، اور اس کے بعد بڑے بڑے انٹرویوز دیے انہوں نے، اور انٹرویو سے پہلے انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے بری طرح حد درجہ تذلیل کی اپنی 2 بیویوں کی، اس حد تک کی کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اب اس بچی نے، جس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے عامر لیاقت حسین سے محبت ہو گئی تھی بچپن میں ہی، اس نے یہ کیا کہ اس نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیا۔ اب بڑی ہی خوفناک ڈیٹیلز ہیں دوست، اس میں آپ کو بڑی باریکی سے بتاتا ہوں کہ اصل میں اس کے جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہے بہاولپور میں جو کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا درج ہے، حق مہر کی کیا صورتحال ہے جو کلیم کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر عامر نے اس کا جواب کیا دیا ہے، اپنی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو جناب علی، تنسیخ نکاح میں اس بچی نے، جو دانیہ ہے، دانیہ شاہ، اس نے یہ کہا کہ یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہے،
शराब पीता है, उसके साथ साथ ये ख़वातीन के साथ यानी अपनी बीवी के साथ गैर महरमों को, गैर मर्दों को लाकर फ़ोहश वीडियोस बनाने का मुतालबा भी करता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि ऐसे इंसान, दरिंदे भी, इंसान तो नहीं कहेंगे, दरिंदा ही कहेंगे, तो दरिंदे भी इस मुल्क, मतलब इस दुनिया में हैं जो अपनी बीवी के होते हुए गैर मर्दों को, नामहरमों को लाके फ़ोहश वीडियोस बनाने का मुतालबा करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी, उनको खाने को नहीं दिया जाता था, 4-4 दिन जो है वो उनको एक कमरे में बंद रखा जाता था और उनके ऊपर जुल्म व सितम की बेतहाशा जो है वो उन्होंने बातें उस दावे में लिखी हैं। और उन्होंने कहा है कि अब मैं उस मौत को तरजीह देती हूँ, भाई मौत को, इस शख्स के साथ रहने की। अब दूसरी तरफ ये संगीन इल्ज़ामात तो लग गए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया हक महर का। हक महर तो जनाब इतना था कि पढ़ के हमारी भी जो है वो अकल दंग रह गई। हक महर में जनाब पहले तो 11 करोड़ रुपए की एक कोठी थी, एक घर था जो उन्होंने हक महर में लिखा हुआ था, प्लस उन्होंने एक जो करोला गाड़ी थी वो 2022 मॉडल वो थी, 2.5 लाख रुपया था, 4 लाख रुपया था, 3 तोले सोना था और जनाब अली को 45 लाख रुपया इसके अलावा भी था। तो टोटल 11.5 करोड़, तकरीबन 12.25 करोड़ के करीब ये रकम बनती है, जिसका उन्होंने हक महर का दावा किया है। कि उन्होंने कहा है कि जी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को आमिर लियाकत हुसैन साहब पेश हों इस केस में और हमें जी इंसाफ दिलवाया जाए। और आजकल जो वीडियोज़ हैं दानिया की, वो भी बहुत टिकटॉक से लेके पता नहीं कहाँ तक। और फिर दानिया का उसमें ये भी मौक़िफ़ था जनाब अली के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बड़ा गुस्सा आता था मेरी वीडियोस के ऊपर, और अगर उनको कोई बात बुरी लग जाती थी तो फिर उस पर भी वो झगड़ा करते थे, मुझे गला दबाते थे, मुझे मारते थे, ज़दोकोप करते थे और इस तरह की बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए गए। अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो अपनी हरकतों की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं, अपनी इल्मी बुनियादों की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से, ऊट पटांग हरकतों की वजह से। यार देखा है तुमने कभी उसको हाय हाय करते, नागन डांस करते? इस तरह के हालात में एक बंदा जो है उसकी बड़ी वीडियोस मशहूर हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इसका जवाब ये दिया है, जिन्होंने हस्बे रवायत, उन्होंने क्या किया, हस्बे आदत, उन्होंने पहली 2 बीवियों की तरह इस पे भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अब मैं एक साइड की स्टोरी नहीं रखूँगा आपके सामने, दूसरी साइड की स्टोरी भी आपको ज़रूर बताऊँगा कि दूसरी साइड पे हुआ क्या था और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना क्या था। भाई माना बहुत अजीबो गरीब इंसान है और मैंने तो आपको दरिंदे से तशबीह दे दी उसको। और ज़्यादा तकलीफ़ दे बात इसकी पता क्या है? ज़्यादा तकलीफ़ दे बात उसकी ये है कि उसने जो लिबादा उड़ा है दैट वो एक इंतहाई तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि हम मज़हब का लिबादा ओढ़ के जब इस तरह की हरकत करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने आप को बुरा बना रहे होते हैं, बल्कि एक खूबसूरत तरीन जो दीन है हमारा दीन इस्लाम, उसके पैरोकार होने के नाते आप उसको भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जो काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। तो दोस्त बात यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि कम उम्र बच्ची थी, मैंने बिस्तर अलग कर लिया, इस तरह की अजीबो गरीब गंदी बातें। और मुझे पता है मैंने 4 साल 4 महीने कैसे गुजारा किया और दिल पर बोझ है। 5% बातें जो हैं वो मंजर आम पर ला रहा हूँ और 5% में उन्होंने कुछ ऑडियो कॉल्स सामने रखी हैं और इस कदर बेहिस और बेगैरत हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अभी तक निकाह में होने के बावजूद उनका ये मानना है कि दानिया का करैक्टर जो है वो बहुत ही गंदा था, ख़राब था, जिसकी वजह से उनको वो बहुत तकलीफ़ में रहे। नाज़रीन, अब 4 माह के बाद उस आदमी को ये समझ आ रही है कि दानिया का करैक्टर बुरा था, जबकि उस लड़की के साथ, बच्ची के साथ वो हर एक टीवी प्रोग्राम में टीआरपी समेटने गए और अपनी तशहीर करते रहे। ऐसी बेहुदा वीडियोस टिकटॉक पे जनाब ने बनाई और कि क्या कहने, आपने देखी होंगी सारी। कभी वो गले लग रहे हैं अब सरेआम अपनी बीवी के टिकटॉक पे और लाखों लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं, तो कभी जो है कंधे पे सर रखा हुआ है, कभी
लाडों से देख रहे हैं, कभी अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, और उसके बाद ये बेहिस बेगैरत आदमी ये कहता है कि मैं वो सैयद नहीं है, और फिर उसके साथ साथ कि दानिया का बाप भी उसका बाप नहीं है। अभी इनकी पहली एक बात ये कि सैयद होना बाइसे शर्फ बात है, ज़रूर है, लेकिन भाई ये तो बताओ कि क्या सैयद ना होना जुर्म है? यानी अगर कोई औरत सैयद नहीं है तो क्या ये उसका जुर्म है, उसे शादी नहीं की जा सकती, उसकी इज़्ज़त में कमी आ जाती? ऐसा तो कोई बात नहीं, ना हमारे मज़हब ने पढ़ाई ना सिखाई। भाई तुम कौन से स्कॉलर हो और तुमने कहाँ से देख ली ये बात और कहाँ सुन ली और फिर इम्प्लीमेंट कैसे की, तुम तज़किरा कैसे किया तुमने उसका? अब एक बार फिर जो है वो क्लैश सामने आ गया है दोनों पार्टियों का। ख़बरों में इन हैं, उन्होंने कुछ कॉल्स भी लीक आउट की हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने, और उन कॉल्स के अंदर ये मुबैना तौर पे बताया गया है अपनी ही बीवी जो अभी निकाह में है उसके हवाले से कि जनाब कोई किरदार के हवाले से बहुत बुरी औरत थी, वो बच्ची थी जिसके मतलब सरेआम कोई मामलात भी चलते रहते थे, इस तरह के हवाले गलीज़ दिए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा था भी या ऐसा है भी, तो क्या उसकी तशहीर करना, अगर आपको ऐसे मामलात महसूस हो रहे हैं तो इस्लाम में नापसंदीदा तरीन हलाल चीज़ तलाक है, आप तलाक दे दें या उसके माँ बाप से बात करें जाके। खुला के दावे के बाद जब आप पे ये सारे इल्ज़ामात लग गए हैं कि आप नशा भी करते हैं, आप फोहश वीडियोस भी बनाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या कुछ गलीज़ हरकतें करते हैं, और इससे भी कुछ बढ़ के बातें हैं जो दानिया ने अपने दावे में लिखी हैं, तो अब आपको ये एहसास हो रहा है जनाब अली कि दानिया का करैक्टर ठीक नहीं है। और अगर भाई करैक्टर ठीक नहीं था तो 4 महीने में तुमने बिस्तर क्यों अलग किया, तुमने मामलात अलग कर लेने थे अपने। इस सारी स्टोरी के अंदर, इस सारी बात के अंदर एक बात बहुत अहम है, और वो अहम बात है नौजवान नस्ल के लिए, लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। ग्लैमर, आगे बढ़ने का शौक़, पैसा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ये कहने पर मजबूर करती हैं कि मेरी पहली मोहब्बत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। जब भी आप इस तरह का कोई करैक्टर देखते हैं, अब ये मुस्तनद बातें होंगी पीछे, आपने सुन रखी हैं, उनमें कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी ना भाई। जब पहली बीवी को तलाक दी तब भी इसी तरह की बातें सामने आई, जब दूसरी बीवी को तलाक दी उसकी किस किस हद तक गिरी हुई वीडियोस लोगों के सामने आए, किस किस तरह बुरा भला नहीं कहा गया। जो इंसान अपनी बीवियों के साथ ये सलूक कर सकता है, आप उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं? इसका मतलब हुआ ना कि आपकी भी कोई लालच है, आपको पैसे की लालच है, आपको सस्ते और जल्दी फेम की लालच, आपको आगे बढ़ना है, आपको शॉर्टकट्स तलाश करने हैं, आपको इसी तरह का। अगर आप उसको बाद में ये कहते हैं कि वो शादी के काबिल नहीं रहा, ये दानिया का बयान है, तो क्या तुम्हें पहले नहीं उसकी उम्र पता थी? उसकी उम्र नहीं पता थी, उसकी बीवियों का नहीं पता था, उसकी बीवियों के साथ होने वाले सलूक का नहीं पता था। तो जब ये सारा कुछ इग्नोर कर दिया तो फिर इसको इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि भाई ये हद आ सकती है मेरे को। रिसर्च करो कि जिस नामवर आदमी को तुम सीढ़ी बना रहे हो या जिस नामवर शख्स के साथ तुम शादी करने लगे हो या उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ रहे हो, उसका माजी कैसा है। अब तो छुपा कुछ भी नहीं, अब तो सब कुछ सामने है। जब वो बच्ची इमरान खान के साथ जाके बैठी, हमारे साबिक वज़ीर आज़म के साथ जाके बैठी, तब उसको एतराज़ क्यों नहीं हुआ? जब वो तमाम टॉक शोज़ में जाके अपनी मोहब्बत के चर्चे कर रही थी, तब उसको क्यों नहीं कुछ हुआ? जब वो सरेआम ये कहती फिर रही थी कि मुझे करोला गाड़ी जो मुंह दिखाई में दी गई है, तब उसको क्या तकलीफ़, कोई तकलीफ़ क्यों ना हुई? जिस तरह से गलीज़ बातें एक दूसरे की तरफ से हो रही हैं, इसको देख के कम से कम अपने दिमाग में एक बात ज़रूर बना लें कि अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला शॉर्टकट्स पे ना करें। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो फिर आपका
ٹاکرا ضرور کسی نہ کسی ایک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے ہوگا. اس لیے اپنی ذات کے لیے سوچنا چاہیے یار, اپنے سیف مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس کو اچھے سے گزاریں. یہ سوچے بغیر کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا. رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اگر آپ کے نصیب میں فیم ہے, آپ کے نصیب میں پیسے ہیں, آپ کے نصیب میں شہرت ہے, تو وہ آپ کو مل کے رہنے. اس کے لیے آپ کو شارٹ کٹس کی ضرورت نہیں.